guys, I am Bhavik Bansal. I am a second year undergraduate at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. 2 years ago, I secured All India Rank 1 in the AIIMS MBBS 2019 exam and All India Rank 2 in the NEET UG 2019 exam. As we all know, the week before the exam and the exam day strategy is really crucial to determining what your rank is going to be at the end of the day. So today we'll be discussing what were my strategies and what are the tips that I learned from whatever right and wrong I did, right? So are you ready to get started? Let's rewind to exam day. So let's start with the night before the exam. So about 2 days before the exam, what comes to your mind is just anxiety, that performance pressure that everybody is building on you. You know, your teachers expect something, your parents expect something, and then there are sleepless nights. And what I would recommend is 2 days before the exam, spend a lot working so that you don't have the issue of not getting enough sleep just before it. So what I did was, the day before the exam, I tried with coffee or whatever, I tried not to sleep in the daytime because that's how I could retain that sleep during the night. And still, during the NEET exam, there was a lot of anxiety because that was the first exam with such big ambitions that I was giving, which may or may not have had consequences later in the exam. But this thing I really improved upon in the AIIMS exam. Because I slept a lot. I slept 8 hours straight and then have a decent meal, not too heavy. You can supplement it with beverages. I supplemented it with coffee to keep me awake, because what happens in these exams is, like, NEET towards the last 2 years or so has been a very high scoring exam, right? From 720, approximately 700 to 720 is a range that people have been scoring continuously. So even one question that you may attempt with a silly mistake, right? You may not look at the question carefully because you just dozed off, that mind dozed off for just 1 second. That could cost you a lot of ranks, that could cost you your dream college, right? So the night before the exam is important because it's staying awake, staying attentive during the exam is as important as knowing what the question is telling you about, right? The night before, I slept at around 12, and this morning I had woken up around 10 a.m. right? So that 10 hours of sleep that I required was committed. Of course, जब मैं 12 बजे सोया था तो ऐसा नहीं था उस दिन, because of all the anxiety that I had कि मैं 12 बजे सोते ही 12:15 तक सो गया था. There was approximately 2 hours जब मैं सोच ही रहा था कि कल क्या होने वाला है. तो वो अवॉइड करना है as far as possible. I couldn't at the time of NEET, ठीक है, तो वो एक कोशिश की जा सकती है. उसके बाद 10 बजे उठने के बाद I did not pick up any book because उस समय relaxing was the most important thing जो मेरे को करनी थी. Then खाना खाया. खाने में लाइट खाना खाना है, बहुत हैवी खाना नहीं खाना, लेकिन keep yourself hydrated, keep yourself energized. That is most important. तो उसके लिए I used to have this coffee routine रोज का to keep myself awake. अब वो कॉफ़ी रूटीन में भी ऐसा है कि you have to time it well. For the last week and last couple of week before the exam, मेरा ये रूटीन रहता था कि मैं 2 to 5 में हर बार एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था. तो therefore 2 to 5 was my clock that decided कि हाँ अब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है. So you can try doing that for the last week, right? उसके बाद खाना खाया. मैंने एक फेवरेट टीवी शो देखा उस समय, बुक्स नहीं उठाई, पेरेंट्स के साथ बातें करी. पेरेंट्स भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे एंड दे वांटेड मी टू नॉट हैव द एंजाइटी बिकॉज दे रिमेंबर्ड कि last day I had problems in sleeping, right? So they had this little chit chat here and there. Then I talked with my brother, watched the TV show with him, and then took off for the center. So let's start off with reaching the center. My center particularly was in Delhi itself, and it was some half an hour away from my home. राइट. तो अगर आपका सेंटर आपके सिटी से बाहर है तो ये रिकमेंडेड है कि पिछले दिन जाके देख लें कि वो कहाँ है, राइट. लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं थी. लेकिन स्टिल आई स्टार्टेड ऑफ 1 hour 1.5 hour बिफोर द एग्ज़ाम वाज सपोज टू हैपन. तो मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ गए थे. मैंने खुद रीचेक किया था, मेरे भाई से रीचेक करवाया था, मेरे पेरेंट्स से रीचेक करवाया था कि एडमिट कार्ड, स्टेशनरी, ये सब लेके जाऊँ, ठीक है. और एक बार मैं गया था बिल्कुल शॉर्ट्स में और हाँ ऐसा टी शर्ट पहन के, तो कुछ ज़्यादा सजने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर मेक्स यू फील कम्फर्टेबल, राइट. क्योंकि मैंने उसी फॉर्म में, उसी क्लोथिंग में, उसी तरीके से एग्ज़ाम्स अपने मॉक टेस्ट दिए हैं पिछले 1 हफ्ते से. मुझे ऐसा लगता था कि इट फील्स नेचुरल टू मी कि 2 से 5 में शॉर्ट्स पहन के एग्ज़ाम लिख रहे हैं.
ठीक है। और एक चीज़ होती है कि नीट में शायद हमारे टाइम तक होता था, आई डोंट नो अब भी होता है, कि पेन्स एंड स्टेशनरी वो प्रोवाइड करते हैं। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप बैकअप में लेके जाएं। देन एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हुए क्या हुआ, अब क्योंकि आई टुक ऑफ सो अर्ली, मैं एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचा तब गेट्स भी नहीं खुले थे। गेट्स नहीं खुले थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड अराउंड, एंड वो क्राउड देख के कई बार डर लगता है कि यार ये एक एग्जाम सेंटर है, एक सिटी के एक छोटे से एग्जाम सेंटर में इतने सारे लोग हैं, तो कंपटीशन क्या हो सकता है। बट देन अगेन मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी बाहर के लोगों से, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही बात कर रहा था, एंड उन्होंने मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया, एंड देन पुरानी चीज़ें याद दिलाई। मेरे टीचर्स से मेरी एक कॉल हुई एग्जाम सेंटर से पहले, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया। तो एक वियर्ड चीज़ जो मेरे साथ एग्जाम सेंटर में हुई वॉज दैट मैं पहले एक्सपेक्ट ये करता था कि नीट एक सरकारी एग्ज़ाम है, उसमें एक छोटा सा स्कूल होगा जहाँ पे पंखा ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, एसी तो दूर की बात है। बट जो मेरा एग्जाम सेंटर था दैट वाज अ वेरी वेल फर्निश्ड स्कूल, आई मीन इट वाज बेटर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज देन माय स्कूल, राइट। सो उसमें एसी बहुत अच्छा चल रहा था, एंड द सीटिंग वाज वेरी नाइस, एंड देयर वाज जस्ट 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और मतलब पूरा एसी वेसी चल रहा था, 2 एसी पर क्लास थे। जो टीचर्स थे, हर क्लास के अंदर 2 टीचर्स थे एज इन्विजिलेटर्स, एंड उनके पास में एक वाटर कूलर सा लगा हुआ था हर क्लास के अंदर, सो दैट वाटर की सप्लाई सीधी बाहर भी नहीं जाना पड़ता। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब आप बैठ जाते हैं अराउंड आधे 1 घंटे पहले वो सेंटर खोल देते हैं, आप यू आर सीटेड इन दी एग्जाम सेंटर, राइट। उस समय ट्राई टू लुक अराउंड व्हाट इज देयर, राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट्स गोइंग टू बी देयर, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब जैसे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम भी ऐसा रिकमेंड करते हैं कि उस आधे घंटे में सब वॉशरूम चले जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवॉइड कि आपको बाद में वॉशरूम जाना पड़े। बट सेकेंड ऑफ ऑल एक रीज़न जो लोग नहीं टाइट करते, जो मेरे को ऐसा लगता है कि होना चाहिए, इज दैट आपको पता लग जाएगा कि वॉशरूम है कहाँ, सो दैट आप एग्जाम के बीच में भटको ना ये ढूंढते हुए, ठीक है। अपने स्कूल को पहचान लो कि कहाँ है क्या, ताकि आपको 3 घंटे में अगर कोई ज़रूरत भी पड़े तो आपको ढूंढना ना पड़े कुछ भी, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, उस समय ऐसी बात चल रही थी, टीचर्स के साथ बात की, एंड एग्ज़ाम के पेपर्स वो पहले से ही बांट देते हैं और हम बस वेट कर रहे थे। इट इज़ बोरिंग फॉर सम इंस्टेंस टू वेट देयर, बट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट्स अराउंड। नाउ आई हैव गॉट द पेपर, एंड पेपर पे सबसे पहली चीज़ क्या देख रहा हूँ मैं कि बायोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है, देन उसके बाद फिजिक्स है, देन उसके बाद केमिस्ट्री है, राइट। और किस सब्जेक्ट को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, दिस यू हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट बाय द मॉक टेस्ट दैट यू हैव गिवन। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं बायोलॉजी पहले करता था, देन केमिस्ट्री करता था, देन फिजिक्स करता था। सो फॉर द फर्स्ट 2 to 5 मिनट्स आई यूज टू लुक ओवर द पेपर कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए। सो एक जनरल इंप्रेशन ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ मैच द फॉलोइंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ देम इज करेक्ट, and there is a lack of diagrams, and lack of diagrams in biology is particularly interesting. There is no diagram in the first 90 questions, which is the whole of biology, right? Match the following में एक must चीज़ होती है कि even if you know 2 or 3 then you are done, right? Let's say I go to question number 43. It says match the following structures with their respective locations in the organs, right? It has crypt of liver, Crohn's, Glissen's, capsule, islet of Langerhans, and Brunner's gland. So out of these, some things like islet of Langerhans is in the pancreas. This is quite common information, right? So is the information that crypts of liver cone are in the intestine. ठीक है, तो अब ये 2 चीज़ें करने के बाद जब मेरे को ये पता है कि C का 1 है, तो C के 1 में ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाता है। देन A का 3 जब मुझे पता है तो भी मतलब ये ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाता है। तो 1 और 4 पे तो आप ऑलरेडी पहुँच चुके हो बाय जस्ट कॉमन नॉलेज, जो कि मतलब आपको शायद पहले से भी पता हो, right? A Brunner's gland in duodenum is also given in NCERT. Though Glissen's capsule is something which is difficult, but Brunner's gland in the duodenum is also given in NCERT, जो कि केवल एक ऑप्शन में है 4. So even if you knew just one thing that is obviously given in NCERT, which is Brunner's gland is in the duodenum, then you have reached the correct option already. ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है मैथ्स ऑफ फॉलोइंग की। अब कुछ ऐसे और क्वेश्चंस हैं, आपको अगर पता है तो मैंने 4 क्वेश्चन गलत किए थे नीट में, उसमें से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी में थे। तो बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका नहीं पता होता है, मतलब इतने एम्बिगुअस होते हैं कि आपको क्या आपके टीचर्स को भी ढंग से क्लियर नहीं होगा, राइट। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी प्रेजेंट थे, जैसे लेट्स से अब हम और आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है कि सेल साइकिल वाला एक क्वेश्चन आया था, एंड अब क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, 4 वर्ड का क्वेश्चन है। सेल्स इन द G0 फेज
options भी terminate the cell cycle, exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle. This is not exactly a test of how good your biology is, but a test of how good your English is and how well you have read the NCERT. Even NCERT to some extent is very ambiguous on this question. और इस वजह से even till the NEET result, most people were not able to agree कि इसका आंसर क्या होगा. तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसका मैंने एग्जिट किया था, आंसर सस्पेंड दिया हुआ था एंड इस पर बहुत लोगों ने डाला कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पर एट द एंड CBSE को जो करना होता है वो करते हैं. ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम क्या होगी कि ऐसे क्वेश्चंस पे अपना बेस्ट अटेम्प्ट लें और आगे बढ़ जाए. इन क्वेश्चंस को लेके एंग्जाइटी नहीं पालनी कि पेपर मुश्किल आया था. ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं. एट द एंड दीज क्वेश्चंस आर लक बेस्ड. ठीक है, बाकी क्वेश्चनों में आपको अपनी एबिलिटी दिखानी है. तो फिर ऐसी बायोलॉजी फॉर द मोस्ट पार्ट आसान ही था. देन वील मूव ऑन टू केमिस्ट्री, राइट, क्योंकि मेरा सेकंड हमेशा केमिस्ट्री होता था. तो केमिस्ट्री स्टार्टेड विद लार्ज डायग्राम बेस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट. तो ये सारे रिएक्शंस भी मोस्टली आपको सीधा NCERT से दिए जाएंगे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक इन द रियल बिगिनिंग एंड इनऑर्गेनिक वाज वन ऑफ माय वीकेस्ट पार्ट्स, राइट. तो अब देखते हैं, जैसे लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन थे. जैसे 129 क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉल इन द विजिबल रीजन. सो विजिबल रीजन हमें पता है कि n = 2 पे यानी बामर सीरीज में होता है. तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने में इफ यू नो इट नॉट इवन 10 सेकेंड यू रिक्वायर. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन. ठीक है, और मोस्टली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी NCERT वाली रिएक्शन है. इसमें भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ मैच द फॉलोइंग एंड लॉट ऑफ ऑर्डरिंग, जो कि इनऑर्गेनिक में होता ही है, राइट. देन वील मूव ऑन टू फिजिक्स. तो फिजिक्स एज अ सेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ये हम सबको पता है. सो एटलीस्ट मोर देन 1 hour टू मोर देन 1.5 hour यू शुड गिव टू फिजिक्स. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे लेट्स से क्वेश्चन नंबर 118. अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्स शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR. सो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो PQR जो है वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं. ठीक है, और वो ट्राइंगल इन ऑर्डर है एंड वेक्टर की पहली ही प्रॉपर्टी है कि इन ऑर्डर अगर 3 फोर्सेस लगे तो उनका सम 0 हो जाता है. तो अगर इसकी वेलोसिटी है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और फोर्सेस इक्वल टू 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो यानी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट. तो इस क्वेश्चन में भी करने में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था, कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी. एंड देयरफॉर दिस क्वेश्चन डज नॉट इवन टेक 1 मिनट. एंड एक फिजिक्स का क्वेश्चन आप 10-15 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी लीड आप ला सकते हैं. तो ऑफकोर्स इसका आंसर रिमेन्स कांस्टेंट होगा. ठीक है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, ऐसे करके आई होप आप पेपर जल्दी खत्म कर दें. मैंने मोस्टली पेपर 2 hours से पहले ख़त्म कर दिया था. एंड इस पेपर ख़त्म करने में यू हैव टू टेक द होल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर आंसरिंग इन द OMR. बिकॉज अगर आपने 2 घंटे में पेपर खत्म कर दिया, सारे OMR में भर दिए, तो 1 घंटा आप कुछ नहीं कर सकते. एंड इवन इफ यू कंप्लीटेड अर्लियर एंड फिल अप द OMR, डू नॉट गो ओवर इट अगेन, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते. केवल एंजाइटी पाल लेंगे ये देख के कि क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ. ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस एंड के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो वियर्ड लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है वो एंड के लिए छोड़ें, उससे पहले पूरा का पूरा पेपर निपटा दें. तो अब पेपर खत्म होने के बाद क्या होता है? पेपर खत्म होने के बाद यू आर लुकिंग एट दी क्वेश्चंस दैट यू डिड नॉट अटेम्प्ट अर्लियर और विच सीम डिफिकल्ट, राइट. तो अब लेट्स से कोई क्वेश्चन था, वैसे तो इस 2019 के फिजिक्स के पेपर में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आए थे एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग जो हम 21 में भी आएंगे. तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी कैलकुलेशन इज एग्जीडिंग 1 मिनट, उसको एंड के लिए रखें, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी जस्ट डिड इन 10 सेकंड्स, राइट. तो ये 10 सेकंड्स वाले क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए फॉर अ क्वेश्चन दैट टुक 10 मिनट्स इज नॉट वर्थ इट. सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. मैंने थोड़ी देर जल्दी खत्म कर दिया था पेपर, लेकिन आई हैड सम 10-15 क्वेश्चन जो कि मैंने छोड़े हुए थे, जो कि मैंने बाद में आराम से कैलकुलेशन करके टाइम लगा के, क्योंकि देन आई न्यू कि 1 घंटा मेरे पास है और मेरे को केवल 10 क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा टाइम लगा के एट द एंड ऑफ द डे 10 मिनट्स पहले पूरा MCQ भर के रिलैक्स किया. पेपर सबमिट करने से 15 मिनट पहले मैंने पूरी OMR भर दी थी. एंड इवन दो देयर वर सम क्वेश्चंस दैट आई वाज डाउटफुल अबाउट, मैंने सबका अटेम्प्ट कर लिया था. देन दैट 10 मिनट्स जो पेपर सबमिट होने से जस्ट पहले के थे, आई वॉज प्रिटी रिलैक्स एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गिव द पेपर टू द इन्विजिलेटर. एंड प्रोबेबली इन्विजिलेटर वॉज ऑल्सो लुकिंग एट कि एक बच्चा आउट ऑफ दिस 20 इज वेरी एक्साइटेड कि अभी मैं पेपर दे दूँगा. तो दैट मोमेंट आई फेल्ट कि हाँ, ये जो 2 साल की प्रिपरेशन थी वो अब ये 10 मिनट का जॉयस मोमेंट है.
एंड आई ऑल्सो फेल्ट रियली कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि कुछ नहीं तो 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन खराब होंगे. उसके बाद भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, विच वॉज द बेस्ट कॉलेज दैट आई कुड गेट थ्रू नीट, वॉज वेटिंग फॉर मी. अब कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, आई रश्ड एज सून एज आई कुड. मैं सबसे पहला स्टूडेंट था जो कि बाहर निकला भागते हुए, और वहाँ मेरे दोनों पेरेंट्स खड़े थे. अब उन दोनों पेरेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना इतनी भीड़ में वॉज वेरी डिफिकल्ट. एज सून एज आई गॉट टू देम, आई आस्क फॉर द फ़ोन एंड मैंने सीधा अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, जो कि उस समय तक अपने एग्जाम हॉल से नहीं निकला था, तो वो कॉल नहीं हो पाई. लेकिन द एक्साइटमेंट टू डिस्कस द पेपर वॉज अनपैरेलल्ड. एंड उस बीच में मैं अपने पेरेंट्स को भी कई बार इग्नोर हो गया कि वो भी पूछ रहे थे, उनको भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि कैसा गया पेपर. एंड आई सेड इट वॉज अमेजिंग. एंड जैसे ही कॉल लगा, अपने टीचर्स को कॉल किया, अपने दोस्तों को कॉल किया. द पेपर डिस्कशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ एट दैट पॉइंट. एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर टू माई होम आई वॉज डिस्कसिंग द पेपर. एंड गाड़ी में से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था, बिकॉज द एक्साइटमेंट वॉज दैट कि अभी यहीं बैठ के पूरा का पूरा पेपर डिस्कस हो गया. पेपर डिस्कस किया, बहुत सारी आंसर कीज आ चुकी थी डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की. कुछ से 690 बन रहे थे, कुछ से 700 बन रहे थे, 695 बन रहे थे, हेयर एंड देयर. देन कुछ टीचर्स ने बताया कि ये क्वेश्चन तेरे फेवर में जाएगा, इस क्वेश्चन के खिलाफ हम अपील करेंगे, सो एंड सो. बट आई हैड दिस इंस्टिंक्ट कि हाँ बहुत अच्छा गया है पेपर, इवन इफ आई डोंट गेट अ गुड रैंक, इट विल बी अ नाइस कॉलेज दैट आई बी गोइंग टू. अक्रॉस द 1 month आफ्टर द नीट एग्ज़ाम, जिसके बीच में एम्स का एग्ज़ाम भी हो गया, जब तक रिजल्ट आया तब तक ऐसा हो गया था कि आंसर की कई बार आ चुकी थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउट्स कि किस क्वेश्चन में CBSE एट द एंड क्या आंसर देगा. एंड इवन ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, विच वॉज 5th June, आई रिमेंबर करेक्टली, इट वॉज द डे ऑफ ईद. एंड सुबह सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट, एंड उनकी वेबसाइट पे एक नया लिंक आया. वी वर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट. आई वॉज इन OCSE बायोलॉजी इन बॉम्बे, and everyone around me were toppers who were expecting good ranks in NEET. Like we sat in one room, and उसके बाद हम NTA की साइट को बार बार वो किए जा रहे थे, रिफ्रेश किए जा रहे थे. एंड उस पर क्या हुआ कि एक लिंक आया, एंड दैट लिंक विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी द रिजल्ट, वो रिजल्ट होने की जगह अपडेटेड आंसर की थी. और वो जैसे ही अपडेटेड आंसर की आई, हम सबके स्कोर्स पलट गए, हम सबके स्कोर्स ऊपर नीचे हो गए. एंड मेरे स्कोर उतना ही रहा, एंड बाकी सबके स्कोर्स ऑलमोस्ट घट गए, बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर की चेंज आया था. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, मेरी रैंक जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी इन द टॉप 10 एकदम से बहुत ऊपर आ गई. आई कॉल्ड अक्षत, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि तेरा क्या चेंज हुआ. एंड देन वियर्डली इनफ उसके और मेरे एग्जैक्ट सेम स्कोर आ गया था. ठीक है, उसके बाद देयर वॉज एक्साइटमेंट. हमने टिकट बुक कर ली थी एक मूवी की बॉम्बे में, कि जैसे ही रिजल्ट आएगा वील गो टू दैट मूवी. एंड वी आर हैविंग लंच. किसी का नेट काम नहीं कर रहा था, मेरे डैड का फ़ोन आया मेरे को, एंड ही टोल्ड मी कि ऑल इंडिया रैंक 2 आई है. वी आर वेरी एक्साइटेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉल्स कमिंग इन. लेकिन जैसे ही मैं मूवी हॉल में पहुंचा, जितने मेरे दोस्त थे सबके पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, बिकॉज सबकी रैंक बहुत अच्छी आई थी. एंड जैसे ही मैं मूवी हॉल में पहुंचा, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, बिकॉज आई वांटेड दैट 3 hours ऑफ रिलैक्सेशन नाउ. एंड जैसे ही मूवी हॉल से मैं निकला, मेरे को इतनी डांट पड़ी है कि तूने फ़ोन नहीं उठाया, तूने इसका फ़ोन नहीं उठाया, उसका फ़ोन नहीं उठाया. बट दैट दोज 3 hours वर वर्थ इट. Well, this brought back so many memories, but it's now time for you to take action. The correct paper attempting strategy can help you achieve your dream rank and your dream college. Now that you know how to do it, go ahead and test yourself with the Test Series Unacademy. Use the code CTWT for a 10% discount on your subscription. I would also like to tag Amritesh Singh Rewal to rewind to his exam days and for you to watch what worked for him and what didn't. So that's it for today. All the best. Hope to see you guys again.